So this is reading number 24, passage number 3, music, maladies and benefits. This is from my volume 2 book, IELTS Academic Readings for Exam Practice, volume 2. These are actual past exam readings, and these are being repeated. As you saw the other day, I discussed Thylacine and it was seen in the exam. So must do these readings, all these readings from both the books, okay? And practice any other readings also that come your way. Cambridge books are very good for practicing readings because those are also actual past exam readings. And apart from these, then if you have to practice any other, it should be the Cambridge books. 1 to 16 now available, I think, 1 to 15 or 16, okay? So now this is the reading, music, the maladies and benefits. The first thing we do when we look into any reading passage, the first thing we say to ourselves is that, oh, we'll do it. I'll do it. Okay. I'll nail it. There are in every passage, there are 13 or 14 questions, total of 40 questions in 60 minutes. And the biggest enemy in doing the reading, which is actually a misnomer, it's not reading, it's comprehension. Okay. The biggest enemy in it is time management. So the first thing we do when we get any passages, we don't start reading the passage. We go to the questions. The first set of questions is MCQs. MCQs, and we read the first question, first MCQ. Okay. Why does the writer have a mixed feeling about the book? राइटर को बुक के बारे में मिक्स्ड फीलिंग क्यों आती है? मिक्स्ड फीलिंग होती है जो फीलिंग, जैसे कोई खुशी की फीलिंग है तो साथ में थोड़ा दुख की फीलिंग भी हो, इसको मिक्स्ड फीलिंग कहते हैं. ठीक है, तो हैप्पी एंड सैड फीलिंग टुगेदर. ठीक है, तो व्हाई डज द राइटर हैव अ मिक्स्ड फीलिंग? अब इसके चारों ऑप्शंस हम पढ़ेंगे. द गिल्टी फीलिंग मेड हिम सो. उसके अंदर एक गिल्टी फीलिंग थी, उसने शायद कुछ कभी गलत किया था, उसकी वजह से उसको मिक्स्ड फीलिंग थी. दूसरा, द राइटर एक्सपेक्टेड इट टू बी बेटर देन इट वाज. राइटर एक्सपेक्ट करता था कि ये इससे अच्छी हो सकती थी. सैक्स फेल्ड टू इंक्लूड हिज पर्सनल स्टोरीज इन द बुक. राइटर, आई थिंक सैक्स ही है, कि उसने अपनी जो, यहाँ सैक्स ऑथर है बुक का, उसने अपनी पर्सनल स्टोरीज उस बुक में इंक्लूड नहीं करी. दिस इज द ओनली बुक रिटन बाय सैक्स. ये सिर्फ एक ही किताब है जो सैक्स ने लिखी है. तो ये चार आपके पास ऑप्शंस है, एंड आपको ये देखना है कि उसको इस बुक के बारे में मिक्स्ड फीलिंग्स क्यों थी. सो वी विल गो नाउ टू द पैसेज एंड वी विल सी वेयर वी गेट दिस कीवर्ड मिक्स्ड फीलिंग और फीलिंग. ओके, एंड वी विल रीड अराउंड इट एंड सी व्हाट कुड बी द आंसर. Music and the brain are both endlessly fascinating subjects, and as a neuroscientist specializing in auditory learning and memory, I find them especially intriguing. So I had high expectations of musicophilia. उसको उम्मीद, उससे expectations बहुत थी musicophilia की. The latest offering from neurologist and prolific author Oliver Sacks. तो Oliver Sacks की जो author की ये जो book थी musicophilia, उससे उसको बड़ी high expectations थी. And I confess to feeling a little guilty reporting that my reactions to the book are mixed. तो उसको ना ये mixed feeling देते हुए book के बारे में उसको थोड़ा सा guilty feeling आ रही थी. अब ये mixed feeling उसको क्यों थी book के बारे में? अब mixed feeling देते हुए उसको guilty feeling आई, और mixed feeling जो थी वो क्यों थी, या इस लाइन में आपको आंसर मिलेगा. So I had high. मैम बी. हाँ बी मैम. हाँ बी. अब इस पैरे में ना कुछ आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग करनी है मैंने. पहली बात तो ये स्पेशलाइजिंग जो है, इसको इसके नीचे रेड लाइन क्यों आ रही है? इट इज बिकॉज ये ना यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश में यहाँ पे ये वाला जो एस है ना, जिसकी जेड जैसी आवाज है, स्पेशलाइजिंग, सिंग नहीं है, जिंग है, तो जिसकी जेड जैसी आवाज है उन्होंने यहाँ पे जेड डाल दिया स्पेलिंग्स में. ओके, इसकी वजह से अब ये रेड लाइन आती है. तो ये ना दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट माने जाते हैं. ये भी लिख सकते हो SING और ZING भी लिख सकते हो. ओके, तो इसमें आपकी कुछ वोकैबुलरी बिल्डिंग है. इंट्रीग, इंट्रीगिंग यहाँ पे लिखा है इंट्रीगिंग.
इंट्रीगिंग वर्ड का मीनिंग, आप साथ साथ अपनी वोकैबुलरी बिल्डिंग कर लो। तो ये जो इंट्रीगिंग वर्ड है इसके स्पेलिंग देखो, इंट्रीगुइंग, इंट्रीगुइंग नहीं होता, स्पेलिंग्स होते इंट्रीगिंग। Intriguing. Intriguing. ओके, इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग, ये यू साइलेंट है। ओके, इंट्रीगिंग मीन्स वेरी इंटरेस्टिंग because of being unusual or not having an obvious answer. Okay, intriguing possibility. Okay, very interesting because it is unusual. साधारण नहीं है, असाधारण है, इसलिए इंट्रीगिंग है। पहला वर्ड ये आपका डेवलप हुआ। और मेरे को बताओ इसमें से कौन से वर्ड का मीनिंग कराऊं? म्यूजिकोफिलिया। ओके, अब ये फिलिया वर्ड है। जो फिलिया वर्ड है ना, ये होता है किसी भी वर्ड के एंड में लगे तो इसका मतलब होता है उसको, किसी को इस चीज से प्यार है, समझ गए? और जो फोबिया होता है ना, इसके ये पीछे लग जाए तो इसका मतलब है उस चीज का किसी बंदे को डर है। अब ये दो वर्ड्स आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी बिल्डिंग में, बिकॉज इन दो वर्ड से आपने कम से कम 100 वर्ड सीख सकते हो एक चुटकी में। किसी भी वर्ड के पीछे फिलिया लगा है तो किसी चीज का प्यार, किसी भी वर्ड के पीछे फोबिया लगा है तो किसी चीज का डर। अब मैं आपको वर्ड बोलती हूँ, टेक्नोफिलिया। टेक्नोफिलिया का क्या मतलब है? लव करने वाला, टेक्नोलॉजी को लव करने वाला। टेक्नोफोबिया, टेक्नोलॉजी से डरने वाला। वाला बंदा नहीं, मतलब टेक्नोफिलिया भी बंदा नहीं है। टेक्नोफिलिया इज लव फॉर टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोफोबिया इज डर ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, और टेक्नोफाइल होता है टेक्नोलॉजी को लव करने वाला बंदा, टेक्नोफाइल, TECHNOPHILE। आप लिख सकते हो यंग पीपल आर टेक्नोफाइल्स, ओल्ड पीपल आर टेक्नोफोब्स। टेक्नोफोब होता है टेक्नोलॉजी से डरने वाला बंदा, और टेक्नोलॉजी से डरना इज टेक्नोफिलिया, एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोफोबिया, एंड टेक्नोलॉजी को प्यार करना इज टेक्नोफिलिया। अब ये मतलब टेक्नोफाइल और टेक्नोफिलिया का फर्क पता चल गया? ठीक है। यस मैम। हाँ, तो इन एक वर्ड से देखो आप कितने वर्ड सीख सकते हो फिलिया एंड फोबिया करके। यहाँ पे क्या वर्ड दिया उन्होंने फिलिया के साथ? यहाँ पे वर्ड दिया है म्यूजिकोफिलिया। अब म्यूजिकोफिलिया से क्या मतलब है? हाँ, लव ऑफ म्यूजिक। अब आपको अगर फिलिया वर्ड का मीनिंग पता है, तो अगर फिलिया वर्ड किसी भी वर्ड में आपके एग्जाम में आए, आपको इमीडिएटली उसका मतलब समझ आ जाएगा। बोलो Yes, ma'am. हाँ, सो दिस इज द एम। तो आपको क्या करने हैं, प्रीफिक्सेस ऐसे जो वर्ड के पहले लगते हैं और सफिक्सेस ऐसे जो पीछे लगते हैं, इन दोनों को कंबाइन करो तो बोलते हैं अफिक्स। तो ये वर्ड्स कर लो, इनके मीनिंग्स कर लो, ठीक है? तो आपकी वोकैबुलरी बहुत जल्दी बढ़ेगी, ठीक है? अब देखो, अब ये आंसर आपका करेक्ट हो गया, पर मैंने आपकी साथ साथ वर्ड बिल्डिंग करा दी। और कोई वर्ड तो नहीं है इसमें जिसका मीनिंग आपको नहीं आता? ऑडिटरी का क्या मतलब है? बोलो। मैम सुनने वाला, लाइक जो कनेक्टेड विद हियरिंग, कनेक्टेड विद हियरिंग, ऑडिटरी, ठीक है? कनेक्टेड विद हियरिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आपको वर्ड बिल्डिंग के साथ में हो गई। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक? सबसे अच्छा पार्ट क्या है बुक का? ए, द फोटो ऑफ सैक्स लिसनिंग टू म्यूजिक, जो उसकी फोटो है जिसमें वो म्यूजिक को सुन रहा है। द टोन ऑफ वॉइस ऑफ द बुक, उस जो वॉइस है बुक की, मतलब हो सकता है वो ऑडियो बुक हो, उसकी जो टोन है। थर्ड, द ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन इन द बुक, जो उस बुक में ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, सैक्स ने अपनी कोई ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दी होगी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ सैक्स वेल्थ, सैक की जो पूंजी है, जो उसकी दौलत है, उसकी डिस्क्रिप्शन। अब हम पढ़ते हैं बेस्ट पार्ट क्या है बुक का। अगले पैरे में होगा मोस्ट प्रोबेबली आंसर। सैक्स हिमसेल्फ इज द बेस्ट पार्ट ऑफ म्यूजिकोफिलिया, तो वो खुद ही बेस्ट पार्ट है।
तो अगर वो खुद ही बेस्ट पार्ट है तो कौन सी ऑप्शन जच सकती है? ऑटोबायोग्राफी वाली। वेरी गुड, Autobiography. वेरी गुड। ठीक है, he richly documents his own life, own life को डॉक्यूमेंट करना ऑटोबायोग्राफी, स्व जीवनी। बायोग्राफी क्या होती है? किसी की जीवनी। ठीक है, और जो बायोग्राफिकल मूवीज होती है उनको क्या कहते हैं, पता है आपको? डॉक्यूमेंट्री मूवीज। ओ, बायोपिक। Biopic. यस मैम। बायो फ्रॉम बायोलॉजिकल, ये मतलब जो उसकी अपनी बायोग्राफी, एंड पिक फ्रॉम पिक्चर, बायोपिक। ठीक है, तो ऐसे आपकी बायोपिक आपने देखी कोई? संजू देखी है? दैट इज ए बायोपिक। ठीक है, अभी मैंने वो जो एक डेक्कन एयरवेज वाले की मूवी देखी है, तमिल मूवी है कि तेलुगु मूवी है, हिंदी में डब्ड भी आ गई है अब तो, वो बहुत अच्छी मूवी है, उसकी ट्रू स्टोरी है, दैट इज ऑल्सो ए बायोपिक। ठीक है, तो ये इनको बायोपिक्स कहते हैं, और ये ओन लाइफ इज ऑटोबायोग्राफी, और किसी की लाइफ के बारे में लिखना इज बायोग्राफी। ठीक है, वर्ड बिल्डिंग भी होगी और आंसर भी आपको मिल गया। आंसर है सी। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन द प्रीफेस Hello. व्हाट डिड Excuse me, ma'am. सैक्स, यस, Ma'am, can you please repeat the first question? फर्स्ट क्वेश्चन आप लेट आए थे? No, actually. ओके, उसको मिक्स्ड फीलिंग क्यों है? I didn't get the answer for that one. आंसर बी है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, मतलब पर उतनी खरी नहीं उतरी, तभी उसको फीलिंग देते हुए वो आई ना, मिक्स्ड फीलिंग आई। ठीक है, Okay, okay. इन द प्रीफेस व्हाट डिड सैक्स ट्राई टू अचीव, प्रीफेस में सैक्स ने क्या ट्राई करा अचीव करना? ए, मेक टर्म्स विद द न्यू टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजी से मतलब वाकिफ होना, मेक टर्म्स मतलब उसको एक्सेप्ट करना। गिव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस म्यूजिकल डिसऑर्डर्स, बहुत से म्यूजिकल डिसऑर्डर्स की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना। एक्सप्लेन हाउ पीपल अंडरस्टैंड म्यूजिक, एक्सप्लेन करना कि लोग म्यूजिक को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। एंड एक्सप्लेन व्हाई ही नीड्स टू डू अवे विद सिंपल ऑब्जर्वेशन, और एक्सप्लेन करना कि सिंपल ऑब्जर्वेशन जो है उसको छोड़ना है, उसको डू अवे विद करना है, उसकी जरूरत नहीं है सिंपल ऑब्जर्वेशन की। तो प्रीफेस में सैक्स ने क्या अचीव करने की कोशिश करी है? लेट अस सी प्रीफेस की बात कहाँ हुई है। Third paragraph. ओके, थर्ड में द प्रीफेस, ओके वेरी गुड, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। Gives a good idea of what the book will deliver. In it, Sachs explains that he wants to convey the insights gleaned from the enormous and rapidly growing body of work on the neural underpinnings of musical perception and imagery, and the complex and often bizarre disorders to which these are prone. He also stresses the importance of the simple art of observation, and the richness of the human context. He wants to combine observation and description with the latest in technology, he says, and to imaginative enter into the experience of his patients and subjects. The reader can see that Sachs, who has been practicing neurology for 40 years, is torn between the old-fashioned path of observation and the newfangled high-tech approach. He knows that he needs to take heed of the latter, but his heart lies with the former. मतलब अब लास्ट लाइन में आंसर है, फॉर्मर क्या है? ओल्ड फैशन पाथ ऑब्जर्व करने का, और लैटर क्या है? हाई टेक अप्रोच, टेक्नोलॉजी की अप्रोच। उसको पता चल गया कि उसको ना हाई टेक्नोलॉजी वाली अप्रोच लेनी पड़ेगी। ही नोज दैट ही नीड्स टू टेक हीड ऑफ द लैटर, पर उसका दिल फॉर्मर के साथ है, पर उसका मन उधर है। तो इस प्रीफेस से उसने ये प्रूव करा है। अब ऑप्शंस दोबारा देखो कौन सा आंसर आपको सबसे बेस्ट जचता है? Mummy. ए जचता है, बिकॉज उसको पता चल गया कि उसको नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़नी है, मेक टर्म्स विद न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, वेरियस म्यूजिकल डिसऑर्डर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं, एक्सप्लेन हाउ पीपल अंडरस्टैंड म्यूजिक बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ मिल रहा है आपको पैसेज में कि आप ये आंसर लिख दो? एक्सप्लेन व्हाई ही नीड्स टू डू अवे विद सिंपल ऑब्जर्वेशन,
ये डी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट अल्टीमेटली जो लास्ट लाइन है बहुत क्लैरिटी से बता रही है कि उसको उसका जो दिल है वो ओल्ड फैशन की तरफ है, और उसको पता चल गया है कि उसको टेक्नोलॉजी अपनानी पड़नी है, मेक टर्म्स विद न्यू टेक्नोलॉजीज, दैट इज आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज डिसअपॉइंटिंग अबाउट टोनी सिसोरियाज केस? सिकोरियाज है कि सिसोरियाज है? सिकोरियाज केस. व्हाट इज डिसअपॉइंटिंग? टोनी सिकोरिया के केस की क्या चीज डिसअपॉइंट करती है? ही रिफ्यूजेस टू हैव फर्दर टेस्ट्स. वो बाकी टेस्ट लेने से रिफ्यूज कर देता है, मुझे नहीं और टेस्ट कराने. ही कांट डिटरमिन द कॉज ऑफ हिज सडन म्यूजिकलिटी. उसको ना उसकी जो सडन म्यूजिकलिटी का आया उसका कॉज वो नहीं डिटरमिन कर पाता. He nearly died because of the lightning. वो lightning हुई तो बिजली कड़की तो he nearly died because of it. His brain waves were too normal to show anything. उसकी brain waves इतनी normal थी कि कुछ पता ही नहीं चला. तो इसलिए disappointing क्या चीज थी टोनी सिकोरियाज के केस की? Let us see the passage. Which कौन से पैरे में है? फोर्थ में. हाँ, ये टोनी फोर्थ में लास्ट में है. हाँ हाँ ओके, पर लास्ट में मिलेगा तो आपको ये पूरा पैरा पढ़ना पड़ जाएगा. आप एक बात सोचो, फिर एक मेथड अपनाओ इसमें. फर्स्ट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस पहले पढ़ लो, नहीं तो फिर पूरा पैरा पढ़ो. अगर उनमें आंसर नहीं मिलता, पूरा पढ़ना पड़ सकता है ऑलवेज. ओके, कीप इट इन माइंड. और कई क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े लंबे, ऐसे एक पूरा पैरा पढ़ के भी करोगे तो 1.5 मिनट बहुत होता है, फिर भी आपको टाइम लग सकता है. और कुछ आंसर्स ऐसे भी होते हैं हर पैसेज में जो आपको 10 सेकंड 20 सेकंड में मिल जाते हैं. तो ओवरऑल आपको प्रैक्टिस करनी है. जब आप प्रैक्टिस करो कि आपको 20 मिनट्स के अंदर अंदर तीनों पैसेजेस करने हैं. ओके, सो व्हाट इज डिसअपॉइंटिंग? सबसे पहले हम पूरा ही पढ़ लेते हैं. द बुक कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ केसेस, मोस्ट ऑफ देम इन्वॉल्विंग पेशेंट्स whom Sachs had seen in his practice. Brief discussions of contemporary neuroscientific reports are sprinkled liberally throughout the text. Part 1, Haunted Part 1 आना चाहिए यहाँ पे. Haunted by Music begins with a strange case of Tony Sicoria, a non-musical middle-aged surgeon who was consumed by a love of music after being hit by lightning. Oh, he suddenly began to crave listening to piano music, which he had never cared for in the past. He started to play the piano and then to compose music, which arose spontaneously in his mind in a torrent of notes. How could this happen? What was the cause psychological? He had had a near-death experience when the lightning struck him. Or was it the direct result of a change in the auditory regions of the cerebral cortex? Electroencephalography showed his brain waves to be normal in the mid-1990s, just after his trauma and subsequent conversion to music. There are now more sensitive tests, but Sicoria has declined to undergo them. यहाँ पे आंसर आ गया. ठीक है, तो अब और सेंसिटिव टेस्ट हैं, अभी आंसर्स मिले नहीं है, पर वो टेस्ट कराना नहीं चाहता, वो मना कर रहा है मेरे को नहीं कराने. He does not want to delve into the causes of his musicality. What a shame. ओके, अब ये आंसर कौन सा बनता है आपके हिसाब से? लेट मी गो बैक. हाँ, ए ही है. ए मैम. He refuses to have further tests. Further test को refuse कर देता है. Okay. Next we have these yes, no and not given answers, and next we have these match the sentence endings. तो yes, no, not given पहले करते हैं. It is difficult to give a well reputable writer a less than favorable review. किसी अच्छे रिप्यूटेबल राइटर को, जो बड़ा माना हुआ राइटर है, उसको अगर आपने लेस फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं देना, रिव्यू नहीं देना, तो वो बहुत मुश्किल है. बिकॉज बहुत इजी है उसको फेवरेबल रिव्यू देना, पर अगर आप उसको गलत रिव्यू देते हो तो आपको पता है अभी बहुत से क्वेश्चंस उठेंगे, आवाजें उठेंगी, क्योंकि बहुत फेमस ऑथर है, आप कहोगे कि अच्छा नहीं लिखा इसने, तो वो बहुत मुश्किल है. मतलब जो ऐसा रिव्यू देना किसी के लिए जो फेवरेबल नहीं है. अब इसका ना मुझे बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऊपर ये वाला. आपको याद है उसको वो गिल्ट फीलिंग आई थी, उसकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी, तो गिल्ट फीलिंग आई ऑथर उसको इस बुक के बारे में. गिल्ट फीलिंग क्यों आई? क्योंकि उसकी उम्मीद ज्यादा थी. इसका मतलब उसने उसको क्या रिव्यू दिया? अच्छा नहीं दिया ना, तभी उसको गिल्ट फीलिंग आई. वो बड़ा माना हुआ राइटर है, पर वो गिल्ट फीलिंग आई, इसका मतलब वो उसके लिए मुश्किल काम था. ठीक है, उसने उसको फिर भी दिया. फिर भी हम चलते हैं पैसेज में, देखते हैं. It is difficult to give that review.
And I confess to feeling a little guilty reporting that my reactions to the book are mixed. ठीक है, या उसने लिखा है so I had high expectations of musicophilia. मुझे बड़ी high expectations थी, तो पर मुझे थोड़ा गिल्ट फीलिंग आई रिपोर्ट करने कि मेरी रिएक्शंस मिक्स्ड हैं. तो इसकी ना ये आसान नहीं है किसी वेल रिप्यूटेड ऑथर को नेगेटिव रिव्यू देना. बेसिकली यस है इसका आंसर. ठीक है, समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Beethoven's Pathetic Sonata is a good treatment for musical disorders. म्यूजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनका एक इलाज है बीथोवन का पैथेटिक सोनाटा. ठीक है, अब पैथेटिक सोनाटा देखो कहाँ पे है. सेकंड पैराग्राफ में. बीथोवन कहाँ पे है? ओके, यहाँ पे देखो. Beethoven's Pathetic Sonata makes a positive impression that is borne out by the contents of the book. Sachs' voice throughout is steady and erudite, but never pontifical. He is neither self-conscious nor self-promoting. Okay. The photograph of him on the cover of the book, which shows him wearing headphones, eyes closed, clearly enchanted as he listens to Alfred Brendel perform Beethoven's Pathetic Sonata, makes a positive impression that is borne out by the contents of the book. Sachs' voice throughout is steady and erudite, but never pontifical. Okay. So we have to know the meanings of this steady, erudite, pontifical. He is neither self-conscious nor self-promoting. ना self-conscious है, ना self-promoting है. तो ये musical disorders की कहीं बात हुई है यहाँ पे? तो आंसर क्या होना चाहिए? Not given. Not given is the answer. पर मैं आपको vocabulary building करवा रही हूँ. आप मुझे बताओ, एक तो erudite का meaning कर लो. Erudite होता है having or showing great knowledge that is gained from academic study. Learner. मैम शो नहीं हो रही डिक्शनरी. अच्छा. Erudite, having or showing great knowledge that is gained from academic study. Learned person is erudite person. ठीक है. She could turn any conversation into an erudite discussion. Erudite होती है जो बड़ी knowledge वाली discussion है. She was a well-respected and erudite scholar. Erudite. ठीक है. Learned, जो बहुत learned हो. Learned. ठीक है. A learned professor and erudite professor. Okay. और कौन सा word है इसमें जो आपको सीखना है? Pontifical. Pontifical is connected with a pope. Pontifical. Connected with a pope. तो इसका यहाँ पे इसका फिर जो है वो लेट्स सी. तो उसकी जो आवाज थी नाइदर एरुडाइट थी. थ्रूआउट स्टडी एंड एरुडाइट. एरुडाइट है उसकी पर नेवर पॉन्टिफिकल. पॉन्टिफिकल है अपने आप को शो करना दैट आप यू आर टू गुड. वो दूसरा मीनिंग जो है उस हिसाब से है. सो सेल्फ प्रमोटिंग भी नहीं है, सेल्फ कॉन्शियस भी नहीं है. एरुडाइट लर्नर्ड है, उसकी आवाज स्टडी एंड एरुडाइट है बट नेवर पॉन्टिफिकल. सो दैट इज इट. The preface gives. अच्छा, next question पे जाते हैं. So what should be the answer? Not given. Sorry, not given. Okay. Sachs believes technological methods is not important compared with observations when studying his patients. अच्छा, Sachs believe करता है कि technological method important नहीं है. Okay. अब आपने ये पढ़ा है, आप बिना पढ़े आंसर दे सकते हो? No answer. नो है. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि सैक को एक्सेप्ट करनी पड़ गई टेक्नोलॉजी. ठीक है. यहाँ लिखा है सैक कहता है कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पर अंदर उसने लिखा हुआ है ना कि सैक ने टेक्नोलॉजी, उसका दिल कहता है नहीं एक्सेप्ट करो, पर उसका मन उसको पता है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट करना.
तो आंसर है नो, क्योंकि टॉपिक ये पैस या क्वेश्चन कह रहा है कि वो कहता है नहीं इम्पोर्टेंट, पर इम्पोर्टेंट तो है। ठीक है, कहाँ पे है आंसर? हमने पढ़ा हुआ है, कौन से पैरे में है? थर्ड पैरा। हाँ, he knows that he needs to take heed of the latter. See, Sachs, who has been practicing neurology for 40 years, is torn between the old-fashioned path of observation and the newfangled high-tech approach. He knows that he needs to take heed of the latter, but his heart lies with the former. Okay, so answer is no. ठीक है? Next question देखो. It is difficult to understand why music therapy is undervalued. तो म्यूजिक थेरेपी, थेरेपी क्या होती है पता है आपको? थेरेपी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, थेरेपी, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है? जो ट्रीटमेंट देता है, और ऐसे ही थेरेपी जो हम कहते हैं एलोपैथिक, दिस इज अ थेरेपी, मॉडर्न थेरेपी, ठीक है। तो थेरेपी इज ट्रीटमेंट। So it is difficult to understand why music therapy is undervalued. अब म्यूजिक थेरेपी की बात कहाँ करी हुई है? 6th paragraph में. पैरा कहाँ से शुरू होता है? To Sachs credit. To Sachs credit part 3, memory, movement and music brings us into the underappreciated realm. Underappreciated है, undervalued realm of music therapy. Chapter 16 explains how melodic intonation therapy is being used to help expressive aphasic patients once again become capable of fluent speech. ठीक है, तो in chapter 20, Sachs demonstrates the near miraculous power of music to animate Parkinson's patients and other people with severe movement disorders, even those who are frozen into odd postures. Scientists cannot yet explain how music achieves this effect. साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सके म्यूजिक ये इफेक्ट कैसे लाता है। और क्वेश्चन कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई म्यूजिक थेरेपी इज अंडरवैल्यूड। म्यूजिक थेरेपी इज अंडरवैल्यूड, उसका व्हाई इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसके बारे में है कुछ कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड? नो, तो आंसर क्या होना चाहिए? Not given. ठीक है। Sachs should have more skepticism about other theories and findings. जो बाकी थ्योरीज एंड फाइंडिंग्स है, सैक्स को उनके बारे में ज्यादा स्केप्टिसिज्म होना चाहिए। स्केप्टिक होता है किसी को शक की नजर से देखना, क्वेश्चन करना कि ये सही है कि गलत है। बाकी थ्योरीज और फाइंडिंग्स के लिए सैक्स को ज्यादा स्केप्टिक होना चाहिए। तो अब देखते हैं अदर थ्योरीज एंड इनकी बात कहाँ हुई है। यहाँ पे है, it is true that the causes of music brain oddities remain poorly understood. However, Sachs could have done more to draw out some of the implications of the careful observations that he and other neurologists have made and of the treatments that have been successful. तो उसको ज्यादा उनके जो इससे ऊपर पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन कुछ रेलेवेंट लग रही है, and he tends to be theories. For one thing, Sachs appears to be more at ease discussing patients than discussing experiments, and he tends to be rather uncritical in accepting scientific findings and theories. हाँ, यहाँ पे ये relevant है। वो थोड़ा accept करने में uncritical है, वो मतलब फटाफट accept कर लेता है। critical होता है जो question करता है, uncritical होता है जो आराम से accept कर लेता है। और सैक्स कहते हैं कि Sachs should have more skepticism. क्वेश्चन है Sachs should have more skepticism. Sachs को ज्यादा skepticism होनी चाहिए बाकी theories and findings के लिए। तो आंसर क्या होना चाहिए? Sachs skeptic नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो uncritical है, तो उसको होना चाहिए क्वेश्चन कह रहा है। तो yes होएगा कि no होएगा? No. Yes होगा ना बेटे आंसर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि उसको होना चाहिए, पैसेज कह रहा है कि वो नहीं है, he tends to be that, और आगे वाले में भी आंसर है that, यहाँ पे फिर है ना he could have done more to draw out some of the implications, उसको ज्यादा होना चाहिए था, he could have done more, वो ज्यादा कर सकता था। तो आंसर इज yes, ये पूरे इसमें से जिसमें से फिर yes निकलेगा। Got it?
Next question is Sachs is impatient to use new testing methods. Sachs ना नए टेस्टिंग मेथड्स यूज करने के लिए impatient है, उसको बड़ी ईगरता है कि मैं फटाफट यूज करूं नए टेस्टिंग मेथड्स. ओके, अंदर कहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में? Last para, ma'am. This one finally in many cases. New technologies एक word दिख रहा है इसमें. Although Sachs recognizes the existence of new technologies, among them far more sensitive ways to analyze brain waves than the standard neurological E test, he does not call for their use. वो उनकी यूज नहीं कॉल फॉर करता. यहाँ पे आंसर है. और क्वेश्चन कह रहा है कि उसको बहुत इम्पेशेंट है फटाफट नई चीजें यूज करने के लिए. आंसर क्या होएगा? No. नो होएगा. No. हाँ, स्ट्रेट वे ऑपोजिट है. ठीक है, चलो ये नो है. अब लास्ट हमारे हैं कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग. ये सबसे पहला, द डिसोसिएशंस बिटवीन हार्मनी एंड मेलोडी. जो हार्मनी एंड मेलोडी के बीच में डिसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब पता है, ऑपोजिट है डिसोसिएशन. ठीक है, हार्मनी एंड मेमोरी के बीच में डिसोसिएशन. अब ये सारे आपको ऑप्शंस पढ़नी चाहिए या फिर यहाँ इसके कीवर्ड्स ढूंढ लो. हार्मनी एंड मेलोडी का है, उसको पढ़ लो और फिर ऑप्शंस पढ़ लो. द डिसोसिएशंस बिटवीन हार्मनी एंड मेलोडी. हार्मनी एंड मेलोडी दोनों की बात कौन से पैरे में हुई है? It's true वाले पैराग्राफ में. ये वाले में. It's true that the causes of music brain oddities remain poorly understood. However, Sachs could have done more to draw out some of the implications of the careful observations that he and other neurologists have made and of the treatments that have been successful. For example, he might have noted that many specific dissociations among components of music comprehension, such as loss of the ability to perceive harmony but not melody, indicate that there is no music center in the brain. वो ये इंडिकेट करते हैं कि इस ब्रेन के अंदर कोई म्यूजिक सेंटर नहीं है. बिकॉज मेनी पीपल हु रीड द बुक आर लाइकली टू बिलीव द ब्रेन लोकलाइजेशन ऑफ ऑल मेंटल फंक्शंस. दिस वाज ए मिस्ड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी. तो वो ये इंडिकेट करते हैं देयर इज नो म्यूजिक सेंटर इन द ब्रेन. कोई एक सेंटर नहीं है म्यूजिक का. ठीक है, अब एफ जो है शोज दैट म्यूजिक इज नॉट लोकलाइज्ड इन द ब्रेन. तो यही है इसका, देयर इज नो म्यूजिक सेंटर इन द ब्रेन. समझ आ गया? Yes, ma'am. कर दो, हाँ, रिपीट कर दो मैम, मुझे पता नहीं चला. कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि द डिसोसिएशन बिटवीन हार्मनी एंड मेलोडी. ठीक है, अंदर लिखा हुआ है कि ये जो डिसोसिएशन है वो बताती है कि म्यूजिक ब्रेन में लोकलाइज नहीं है. अभी देखो, यहाँ पे डिसोसिएशंस की बात हुई, यहाँ से पढ़ते हैं. For example, he might have noted that the many specific dissociations among components of music comprehension, such as the loss of the ability to perceive harmony but not melody, indicate that there is no music center in the brain. ठीक है, और F option कह रही है show that music is not localized in the brain. समझ आ गया? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ ट्रीटिंग म्यूजिकल डिसऑर्डर्स. जो स्टडी है ट्रीटिंग म्यूजिकल डिसऑर्डर्स की, ओके, स्टडी ऑफ ट्रीटिंग म्यूजिकल, ट्रीटिंग की बात कहाँ हुई हुई है? Fourth para, I think. From where does it begin? The book consists mainly. यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात हुई है.
लास्ट पैराग्राफ में भी है ट्रीटमेंट ऑफ म्यूजिक ब्रेन Yes, डिसऑर्डर. मैम लास्ट में है. लास्ट में अगर ट्रीटमेंट की बात लास्ट में है तो थेरेपी वहीं पे है. कहाँ पे है? मैम फिफ्थ लाइन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ म्यूजिक ब्रेन. Okay. Okay. In fact, although he exhibits the greatest compassion for patients, he conveys no sense of urgency about the pursuit of new avenues in the diagnosis and treatment of music brain disorders. Okay? कहता है कि कोई urgency नहीं है. Okay. तो फिर आगे क्या कहता है? The absence echoes in the book's preface, in which Sachs expresses fear that the simple art of observation may be lost if we rely too much on new technologies. He does call for both approaches, though, and we can only hope that the neurological community will respond. Okay, so the answer is, huh? So what should be the answer among these? The study of treating musical disorders. Indicates that medication can have varied results. Answer तो यही है. Yes, मैम. हाँ, तो ये उस पैरे में है अभी जो पढ़ा है हमने. मैम सेकंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइंस अगर हम देखें, इससे जो ऊपर है बस फाइनली से ऊपर वाला यहाँ पे है, पैराग्राफ है. The excitability of the brain in general, their effectiveness varies widely. तो vary मतलब wide उसके effects हो सकते हैं. Treatments की यहाँ बात हुई है, यहाँ से आंसर है B, not from the last para. Okay? ठीक है? Next. The EEG scans of Sachs patients. EEG scans Sachs patient के show no music brain disorders. ये हमने पढ़ा था पहले. Yes, मैम मैम. लास्ट पैराग्राफ Finally में वाले पैराग्राफ में. EEG scans. Okay. Second line में मैम. हाँ. See, in many of the cases described here, the patient with music brain symptoms is reported to have normal EEG results. तो उसके normal EEG results हैं. यहाँ पे option है. EEG results show no music brain disorder. उनमें कोई music brain disorder नहीं है, normal है. ये है. Okay. Sachs believes testing based on new technologies. Sachs believe करता है कि जो testing है which is based on new technologies. So what should be the answer? Testing based on new. अच्छा वो कहता है observation भी करो. यही कहता है ना end में हमने पढ़ा था. He does call for both approaches though, and we can only hope that neurological community will respond. The simple art of observation नहीं तो गुम जाएगी. तो हाँ, तो सैक क्या बिलीव करता है? टेस्टिंग बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज. ए हम आगे पहले लिख चुके हैं, बी भी लिख चुके हैं और एफ भी लिख चुके हैं. सी, डी और ई में से होएगा. Should not be used in isolation is the answer because अकेले नहीं यूज करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन को भी यूज करना चाहिए. मैम ये कैसे क्लियर होता है कि आइसोलेशन में यूज करना चाहिए? मैम ये नहीं पता चला. हाँ, ये पता है कैसे क्लियर होता है. देखो उसमें लिखा है यहाँ पे है, वो कह रहा है the absence echoes in books in which Sachs expresses fear that the simple art of observation may be lost if we rely too much on new technologies. He does call for both approaches. अकेली अप्रोच को आइसोलेशन में मत यूज करो. ये बेटे जिस्ट में से है, आइसोलेशन का मतलब है अकेले यूज करना. वो कह रहा है अकेले नहीं यूज करना. समझ आ गया? मैम Yes, 38 रिपीट कर दो एक बार. 38th. The study of treating musical disorders, the study of indicates that medication can have varied results. यही है ना आंसर? यहाँ पे है effectiveness varies. यहाँ पे treatments की बात हुई है. तो ओके मैम. हाँ, यहाँ पे आंसर. ठीक है. Okay, so we have done this passage and now we'll get back at sharp 11 we'll begin the class. 2-3 minutes before that I'll log in again with the same link and we will discuss a few more positive negative development essays. आपको one type of essay एक week में उठा के clarity ज्यादा हो रही है ना? Ma'am, today's Tuesday. Today's graph class. Oh yes. I'm so absent-minded.
Okay. I am developing senile changes. What are senile changes? Senile नहीं पता? Behaving in a confused or strange way and unable to remember things because you are old. आप लिख सकते हो मेरे बारे में. I think she's going senile. ये sentence कितना फिटिंग है. पता है मेरा एक स्टूडेंट है, उसने euphemism यूज करा. Euphemism पता है क्या होता है? EUPHEMISM. Euphemism. An indirect word or phrase that people often use to refer to something embarrassing or unpleasant, sometimes to make it seem more acceptable than it really is. अब senile changes वैसे तो negative है ना. अब मुझे उसने बोलना था कि आप बेटा ना बूढ़े हो गए हो. अब वो बड़े उसने euphemism में बोला. पता है उसने क्या बोला? मैडम तुसी सियाने हो गए हो. सियाने क्या होता है पंजाबी जिनको आती है? समझदार। नहीं, सियाने ओल्ड को भी कहते हैं. ओके. जी ओल्ड को हाँ, उसने मुझे बोला मैम तुसी सियाने हो गए हो. euphemism यूज करा उसने. सीधा बोल रहे मैडम बुड्ढे हो गए हो. वो थोड़ा ज्यादा खराब लगना थी ना, है ना. हम कहते हैं euphemism होता है, हमने किस कहना है कि वो मर गया है, वो मर गया है. उसकी जगह हम बोलते हैं कि he has passed away. That is euphemism. He is no more. We've lost him. These are euphemisms. Okay, saying something in a less blunt way. Okay. ओके मैम. Forward आ गया आपको. Now we'll get back and in. Can I ask ma'am something? Sure, why not? Ma'am, how to write 33, 37 to 40 आंसर्स जो हैं उसमें वो हमें ऑप्शंस देते हैं, तो वो ऑप्शंस मतलब हमें खुद से उसको फिट बैठ रहा है या ना, वो डायरेक्ट उसको ही हमें लिखना होता है? आपको A, B या C या D आंसर देना है. आपको पूरा नहीं. मतलब A to F में से. यस. हाँ हाँ ठीक है. हाँ ओके ओके. तो पैरा रीड करके ही हमें वो समझना पड़ता है. ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके मैम. ओके थैंक यू. आप कौन हो? आई एम नेहा मैम. नेहा. अच्छा अच्छा. आपने कब ज्वाइन करा? टुडे मैम. अच्छा अच्छा ठीक है. कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी मैम. बोरिंग तो नहीं लगी? नहीं मैम बिल्कुल नहीं. समझ में आया थोड़ा थोड़ा. मतलब रीड करना ही जरूरी है सबसे ज्यादा. हाँ बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा. मेरे को अब एक और Yes. स्टूडेंट बोल रहा था कि बाकी जो है ना वो सब बोलते हैं कि पढ़ो मत पढ़ो मत. पढ़े बिना थोड़ी हो सकता है कुछ. नहीं कुछ नहीं होता. पढ़े बिना थोड़ी ना एग्जाम्स होते हैं. हाँ. थैंक यू मैम. Okay, okay. See you at 11 sharp. Okay. ओके मैम. ओके बाय. Bye bye.